جو بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو امریکی وفد تھا اس کے پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا تھا، تو اسی پر میں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہیے گا کہ جیسا کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو وفد پاکستان بھیجا ہے مکمل مائنڈ سیٹ پراپر تھنکنگ کے ساتھ بھیجا ہے جو کہ ان کو پولیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچائے گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک کا یہ حق ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ حق ہے کہ وہ وہی مینڈیٹ دے کے بھیجیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ایرانین بھی جب ان کے رہبر نے ان کو یہاں بھیجا تو انہوں نے بھی اسی لیے بھیجا، اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ان کے پریزیڈنٹ نے، پشکیان صاحب نے، کہ ہم اپنے انٹرسٹ، اپنے عوام کا انٹرسٹ جو ہے ملوز خاطر رکھیں گے۔ یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے، بنیادی بات ہے۔ لیکن جب بیٹھتے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے، جب میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے چیزیں مزید نمایاں ہوتی ہیں، اس کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ اور جب خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور اس میں جتنی امپاورمنٹ ملی ہے جس فریق کے گروپ کو، اس صورت میں جے ڈی وینس کو، اور دوسری سائٹ پر اسپیکر صاحب جو ایران کے ہیں، باقر کالباف صاحب، تو وہ جتنی ان کی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کنسلٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ میں بھی اس چیز کو، جیسے کہ آپ کو میں پہلے سیگمنٹ میں بیان کر رہا تھا، کہ اس میں کوئی ڈیڈ اینڈ کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا۔ اس میں ایک پوائنٹ سب سے زیادہ اس میں گرم رہا، اور وہ تھا افزودگی کا۔ تو اس کی وجہ سے مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اور افزودگی کے بارے میں نے بتا دیا کہ اسرائیل اس کو اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھتا ہے۔ یہی بات اسرائیل جے سی پی او کی مخالفت اسرائیل نے کیوں کی تھی، نیتن یاہو نے جے سی پی او کی 2015 میں کیوں کی تھی؟ اور اس سے پہلے جب بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی اوباما کے زمانے میں، اس کی وجہ یہی تھی، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جے سی پی او، جو کہ P5+1 یعنی جرمنی کے علاوہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں، انہوں نے مل کے بڑی تکودوں کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچایا تھا کہ ایران ایکسیسیبل ہو جائے، ایران جوہری قوت کبھی نہ بن سکے، خاص طور پہ جو اس کا سن سیٹ کلاس تھا 2031 تک جے سی پی او کا۔ لیکن اسرائیلی پریشر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ آ کے اس کو ختم کر دیا، واک آؤٹ کر گئے ادھر سے۔ اور وہی میرے تجزیے کا ایک محور ہے کہ کیونکہ وہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں، اس لیے اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ ورنہ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ افزودگی کے بارے میں ایران پہلے بھی تیار تھا کہ جو دنیا میں جو ہمارا ساورن حق ہے اس کے مطابق آپ ہمیں سیولین یوز کے لیے کرنے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے 240 کلو گرام جو 60% تک افزودگی کر گئے ایرانین، اور وہ بھی ان کا ایک لحاظ سے جب معاہدے میں رہے ہی نہیں جے سی پی او کے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ واک آؤٹ کر گئے تھے تو جو ان کو یہ ٹائم ملا اس میں انہوں نے مزید سینٹریفیوج منگا کے مزید انریچمنٹ کری۔ اس کے لیے وہ یہ تیار تھے کہ اس کے میکینزم بنا لے۔ اور جو اشارے مل رہے تھے ان کے گفت و شنید سے 28 فروری سے پہلے بھی، کہ وہ IAEA کے اس میں دے سکتے تھے، کہ اوور سائٹ میں دے سکتے تھے۔ رشیا کی بھی بات آ رہی تھی، رشیا نے آفر کی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا، اب جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے مجھے، اس منظر نامے میں آگے چل کے اگر اس میں مزید کوئی فائن ٹیوننگ ہوئی، کیونکہ یہی جے ڈی وینس نے اسی پوائنٹ کا ذکر کیا ہے اپنی مختصر گفتگو میں پریس کے سامنے، تو اگر اب جا کے ایسا کوئی منظرنامہ آیا، ایران جب اپنے رہبر سے اور باقی وہاں کے اکابرین سے کنسلٹ کر لیتا ہے، جے ڈی وینس کا جہاز جب وہاں اترتا ہے اور فیس ٹو فیس ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کی باقی ٹیم سے، جس طرح کہ عبداللہ گل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اس کے جیلسی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ تیسری ٹرم امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن نہیں سکتے، اور ریپبلکن کے لیے سب سے اہم کینڈیڈیٹ یہی بنتے ہیں، تو ان کے رائیول گروپ جس میں زیادہ تر اسرائیلی اس کے بینٹ آف مائنڈ کے زیادہ ہیں، تو وہ پریشر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگلا مرکز بن سکتا ہے وہ 240 کلو گرام افزودہ شدہ یورینیم کا، کہ جس کی اوور سائٹ میں یا جس کے
कंट्रोल में ईरान राजी हो सकता है कि दे दें, जिस तरह के हम ईरान के साथ खुलूस नीयत के साथ हम और चाहते थे। मैं दोबारा आऊंगी जमील साहब के पाकिस्तान किस तरीके से एक अब आलमी डिप्लोमेटिक हब इस्लामाबाद बन सकता है, क्योंकि इस तमाम तर एक्टिविटी ने ये तो बहरहाल पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है। मैं आऊंगी दोबारा ताकि आपके भी जो एक पूरा एक एक्सपीरियंस रहा है जमील साहब, आप उस लेंस में से जवाब दे सकें इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं चाहूँगी कि अब्दुल्ला हमीद साहब भी इस पर कॉमेंट करें लाजमी, कि जैसे कि जमील साहब ये बात कर रहे थे कि डेफिनेटली इन 15 निकात में ये तो बड़ी अहम हम समझते हैं कि कामयाबी है कि सिर्फ एक पे अब डेडलॉक बरकरार है। तो कैसे देखते हैं आप हमीदुल्लाह साहब, आप अब्दुल्ला साहब के ओवरऑल, अगर हम यहाँ पर इस्लामाबाद बतौर सिफाती मरकज़ उभर कर सामने आए हैं, और हम अगर थोड़ा सा इस सिनेरियो में मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आप इस जो नुक्ता है इस पहलू को भी जो है वो लाजमी एनालिसिस करें इस पे कि पाकिस्तान की ही तो ये गैर जानिबदारी थी कि जिसमें अभी जो हम निकात सामने आ रहे हैं ईरान की तरफ से भी, कि बहुत सारे नए मौज़ूआत भी गुफ्तगू में शामिल हुए हैं। वो एक क्वेश्चन, वो एक स्पेस प्रोवाइड करना दोनों फरीक को कि खुलकर वो दोनों फरीक अपने मुतालबात सामने रख सकें, वो जो एक दूसरे से बात करने के लिए भी राजी ना थे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि आलमी तौर पर जो डिप्लोमेटिक हब बनकर अब इस्लामाबाद सामने आया है। ज़कात साहिबा, पाकिस्तान इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अभी भी हब बन के आया है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। पाकिस्तान उन वाहिद ममालिक में से है जिसका इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके साथ एक बहुत अच्छे मरासिम भी हैं और एक इन्फ्लुएंस भी कैरी करता है पाकिस्तान। अब आप देखें कि इसके अंदर एक जो नुक्ता मेरे ख्याल में वो यहाँ बयान नहीं किया गया, और जो मैं समझता हूँ कि वो जेडी वेंट्स खामोशी से पी गए हैं, और वो है चाइना की सिफारतकारी। कि चाइना की गारंटी, क्योंकि जहाँ चलें अफसुदगी यूरेनियम है, उनके पैसे वापस करने हैं, फ्रोजन अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज करने हैं, उनके ऊपर से सैंक्शन लिफ्ट करनी है, अब नए हुरमुज हो गई, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक गारंटी अपनी जगह पे मौजूद है, और वो गारंटी सबसे बड़ी है कि इस बात की कौन गारंटी देगा कि मुस्तकबिल में इसराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से कोई मुश्तरका या अलग-अलग हमले नहीं होंगे। और यहाँ बात आती है पावर शेयरिंग की, यानी कि अमेरिका अगर ये गारंटी को एक्सेप्ट करता कि बस चाइना जो है वो उनको कहता कि जी ठीक है हम गारंटी देंगे, तो फिर तो चौधरी की गारंटी वड्डे चौधरी ने दे दी, दूसरे लफ्जों में। तो फिर अपने से बड़ा चौधरी तो अमेरिका फिलहाल किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा अहम पहलू है। दूसरा इसका जो एक पहलू है और वो ये है कि देखें, जब आपस में मिलते हैं गुबार निकल जाता है, बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं, और फिर बताया जाता है कि आपने हमारे साथ ये जुल्म किए, ज्यादती की, आपने हमारे साथ फलाना काम किया। तो ये भी सारी चीजें आती हैं। देखें, ये मेरी इतलात है कि जो जेडी वेंस थे वो चंद घंटों के लिए आए थे पाकिस्तान, और वो गालिबन 3 से 6 घंटे के लिए आए थे, लेकिन ये 21 घंटे उनको रहना पड़ा। वो रात को किसी सूरत यहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो रात रुक के गए हैं। दिस मीन्स के वो दे वांट बिजनेस, और ये अब जैसे जमील साहब ने भी बात कही है कि अब दे विल गो बैक टू देयर होमलैंड, वहां जाके मुख्तलिफ उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इम्पोर्टेंट उनके लोग हैं, उनकी मिलिट्री हायर कमांड है, उनके साथ बात करेंगे। एक बात तय है कि इसके अंदर ठीक है इसराइल तो एक स्पॉइलर है ही है, लेकिन जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि इसराइल की किस्मत का फैसला आज कल में कुछ न कुछ सामने आएगा, और लगता यही है कि ये मुसीबत इनके लिए बन जानी है, क्योंकि इसराइल के जो वजीर आजम हैं वो करप्शन, रिश्वतखोरी और दीगर घिनौने जराइम में मुलव्विस हैं, और इसराइल में जो तबाही आई है, बर्बादी आई है, आज उसके ऊपर इसराइली कौम सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब देखें, जंग बंदी हो गई है, अमन आ गया है, फिलहाल वक्ती सही, लेकिन लोगों को सुकून तो मिला है। ये थोड़ी है कि मिनट मिनट सायरन बज रहे हैं और 15 सेकंड के फासले से वो बंकर में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसराइल के अवाम ने कभी नहीं सोचा था कि वो बंकर में जिंदगी गुजारेंगे। उनकी फौज में टूट फूट का शिकार हो गई थी। आप देखें ना, उनके आर्मी चीफ अयाल जमीर का
ये कहना है कि उनकी फौज इम्प्लोजन का शिकार हो सकती है। फिर आप ये देखें कि इसके अंदर बहुत सारे और भी वाकयात हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका ने जो उनको उनके एसेट्स फ्रीज किए हैं, पहले तो बात यह है कि अमेरिका जो मादी की तमाम जंगें हैं वो लड़ता रहा लोगों के पैसों पे और अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर। वो कभी किसी से कहता था पैसे दो, कभी कोई अरब दुनिया देती थी, लेकिन आज अरब दुनिया भी उनसे दूरी इख्तियार कर गई है। आज उनसे नेटो दूरी इख्तियार कर गया है। आज यूरोपियन यूनियन उनके करीब नहीं खड़ी। आज साउथ कोरिया और जापान जैसे मुल्क जो उनके बिल्कुल उनके अड्डे वहां मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एक एक शिप देने से इनकार कर दिया। आखिर दुनिया एक चेंज हो रही है ना। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि इस टाइम पे वो अपने आप को रियलाइज करें कि वो अब सोल सुपर पावर का स्टेटस नहीं रखते। यहाँ दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि चाइना ने अगर कोई हथियार फराहम किए या उनको न्यूक्लियर के हवाले से कोई सही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे आपका पॉइंट आ चुका है। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। आप इस तमाम तर डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? इस सब के ऊपर आपका क्या टेक है, ये कहिएगा। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे समा की ट्रांसमिशन जारी है और तज्ज़िये भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरा जो कि पाकिस्तान मेज़बान कर रहा था, पाकिस्तान की मेज़बानी में मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका का वक्त वापस रवाना हो चुका है और इस तमाम तर डेवलपमेंट के ऊपर तज्ज़िये भी जारी हैं। तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि अब चूंकि वफ्द वापस रवाना हो चुके हैं, वहां पर जाकर क़यादत से मुशावरत की जाएगी और उसके बाद कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। मुज़ाकरात को फुल स्टॉप नहीं लगा है, मुज़ाकरात आगे जारी रहेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्मीद की बात है। पुर उम्मीद है, इस वक्त पूरी दुनिया पुर उम्मीद है और यकीनी तौर पर जो एक जेस्चर हमें देखने को मिला है दोनों ममालिक की जानिब से, जैसे कि JD Vance की जो प्रेसर थी वो हमने समा के नाज़रीन को सुनाई। इसके बाद जो ईरान की जानिब से भी बयान दिया गया था ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, वो भी हमने समा के नाज़रीन को बताया। तो एक होप है, एक उम्मीद है। और जैसे कि हमारे साथ जो मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही आरा शामिल कर रहे हैं कि एक 47 साल से जो एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन रही है, वो ज़ाहिर है एक बहुत अच्छे मरहले की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, समा की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है ब्रेक का। ये है HBL PSL 11 का न्यू एरा, जिसका हर मोमेंट है वायरल होने वाला। इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं। पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।